हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी बुक क्लास 7 और इसका चैप्टर आज हम रीड करेंगे 12 और चैप्टर का नेम है आपका द फोर सिंगर्स। तो आज आपका न्यू चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है 12 चैप्टर है द फोर सिंगर के बारे में। सिंगर मीन्स आपका क्या होता है, गायक, ठीक है। और फोर मीन्स क्या होता है, चार। तो ये जो स्टोरी है वो चार गायकों की है। तो वो गायक कौन कौन है तो आपको पहले ही बता दिया जाता है। वो गायक जो है, एक गधा है, एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक मुर्गा है। तो ये चार गायक हैं और इनकी स्टोरी है और कैसे ये मतलब इनके मालिक इन्हें घर से निकाल देते हैं। उसके बाद ये अपनी जीविका कमाने के लिए रोम सिटी जाते हैं, रोम शहर जाते हैं और वहीं पर अपनी जीविका कमाते हैं एक सिंगर के रूप में। तो देखते हैं कि ये सिंगर जो हैं वो गलियों में गाते हैं, कैसे जीविका कमाते हैं, क्या ट्रिक अपनाते हैं। तो ये इस पूरे चैप्टर में हम उसके बारे में जानेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फोर सिंगर, चार गायक। A potter who lived in a village in Italy had an ass that was very faithful and hardworking and served him for many years. When at last he grew too old and weak to work hard, the cruel potter decided to get rid of him. One day he beat him hard and drove him out of the house. The poor ass did not quite know where to go and what to do. He thought for some time and decided to go to the holy city of Rome, where people were kind to animals. There he hoped to earn his living by singing in the streets. For the thought that he had a fine loud bray, he had not gone far when he saw an old dog limping along the road. "What is the matter, Mr. Dog?" he asked. "Alice," said the dog, "my master has driven me out of the house because I am old and weak and can no longer guard his house well. I don't know where to go and what to do." "Listen to me," said the ass. "I am going to Rome to earn my bread as a singer. You seem to have a loud bark and a fine grow. Why don't you come with me and try what you can do in the same way?" The dog said that he was willing, and they set off on their journey together. They had not gone far when they saw a tomcat sitting by a broken wall and looking very sad. Looking at the cat, the ass said, "What is the matter, Mr. Cat? Why are you so sad?" "Alice," replied the cat, "I am fallen on evil days. I am beginning to grow old and can't run about the house after mice as I used to do until quite recently. So my master beat me hard this morning and drove me out. Now I don't know what to do and where to go." "Don't worry," said the ass. "We are going to Rome to earn out living as singer. Why don't you come with us? You can also become a good singer. For you have a sharp meow." The cat was very much pleased with this idea and joined the party. After some time, as they were passing by a farmhouse, they saw a cock sitting on the gate and crowing loudly. "What's the matter, Mr. Cox?" asked the ass. "Why are you crowing so loudly?" "I am telling my mistress what I think of her," replied the cock angrily. "For many years I have crowed every morning to tell her the dawn is here. And what do you think she means to do this evening? She is going to have me killed and cooked for supper." "Mr. Cox," said the ass, "we are going to Rome to make a living by singing in the streets. It will be better for you to come with us than to stay here to have your head cut off."
You are gifted with a loud crow, and if we all take care to sing in it in tone, we may get no end of money. So come along with us, will you? With all my heart, said the cock, and they all set off on their journey. When night fell, they found themselves in a wood and decided to pass the night there. The ass and the dog let themselves down under a tall tree. The cat climbed up into the tree, and the cock flew up to the top of the tree and sat on a little branch before he went to sleep. The cock took a good look around on all sides to see that all was well. Far away in the distance he saw lights, so they set off towards the place where the cock had been the light. Soon they found themselves quite close to a house. Being the tallest in the party, the ass went up to the window, peeped in for a few. तो पहले हमने रीडिंग की, तो आप पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे कि वर्ड्स आप अच्छे से उसको प्रोनाउंसिएशन कर पाएँ। उसके बाद हम इसे हिंदी के साथ ट्रांसलेट करेंगे, इसकी मीनिंग जानेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ए पॉटर, पॉटर मीन्स क्या आपका होता है, कुम्हार। ए पॉटर हु मीन्स जो, लिव मीन्स रहता था, इन मतलब में, ए विलेज एक गांव में। ए पॉटर हु लिव्ड इन ए विलेज, एक कुम्हार जो एक गांव में रहता था। इन इटली, इटली में। हैड एन एस, उसके पास एक गधा था। जो आपके एस होते हैं, एस मीन्स गधा। दैट वॉज वेरी फेथफुल, दैट मीन्स जो, वाज मीन्स था, वेरी फेथफुल बहुत वफादार। मतलब ए पॉटर हु लिव्ड इन ए विलेज इन इटली, एक कुम्हार जो इटली में एक गांव में रहता था। हैड एन एस, दैट वाज वेरी फेथफुल, उसके पास एक गधा था जो बहुत वफादार था। आपको बताना है एस मीन्स गधा होता है और किसके मीन्स गधा होता है, वो आपको कमेंट में बताना है। एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम करता था। एंड सर्व्ड हिम फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों से उनकी सेवा कर रहा था। सर्व करना मतलब सेवा करना, हिम मीन्स उनकी, फॉर मैनी ईयर्स मतलब कई सालों से, और कई सालों से उनकी सेवा कर रहा था। वेन, जब एट लास्ट अंत में, ही ग्रू टू ओल्ड, वह अधिक बूढ़ा हो गया। एंड वीक, और कमज़ोर हो गया। टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करके, मतलब इतना कठिन परिश्रम करके जब अंत में वह बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। द क्रूअल पॉटर, क्रूअल मतलब निर्दयी, पॉटर मिस होता है कुम्हार ने, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, टू गेट रीड, रीड करना मतलब छुटकारा पाने का, ऑफ हिम मतलब उससे। द क्रूअल पॉटर डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ हिम, निर्दयी कुम्हार ने उससे छुटकारा पाने का निश्चय किया। वन डे, एक दिन, ही बीट, ही मिस उसने, बीट मिस पीटा, हिम मिस उसे, हार्ड मतलब अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा। वन डे, एक दिन, ही बीट हिम हार्ड, उसे बहुत अधिक पीटा। एंड ड्रॉप हिम, और निकाल दिया, हिम आउट बाहर, ऑफ द हाउस मतलब घर के। एंड ड्रॉप हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसे घर से बाहर निकाल दिया। द पुअर एज डिड नॉट क्वाइट नो, द पुअर मीन्स गरीब, एस मीन्स गधा। तो यहाँ गरीब नहीं कहेंगे, पुअर मीन्स आपका गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे कहेंगे बेचारा, ठीक है। द पुअर एज, बेचारा गधा, डिड नॉट क्वाइट नो, नहीं जानता था, वेयर टू गो, कहाँ जाए, एंड वाट टू डू, और क्या करे। मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो अब कहाँ पर जाए और क्या करे। ही थॉट, उसने सोचा, फॉर सम टाइम, कुछ समय। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, टू गो जाने का, टू द हॉली सिटी, हॉली मीन्स आपकी होती है पवित्र, सिटी मीन्स शहर। तो एंड डिसाइडेड टू गो टू द हॉली सिटी ऑफ रोम, रोम इस शहर का नाम है, ठीक है। ही थॉट फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय सोचा। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, टू गो टू द हॉली सिटी ऑफ रोम, पवित्र शहर रोम जाने का। और उसने कुछ समय सोचा, और अंत में, या कह सकते हो, और उसने निश्चय किया पवित्र शहर रोम जाने का।
या वेयर पीपुल वर काइंड टू एनिमल्स। वेयर मतलब जहाँ, पीपुल मतलब लोग, जहाँ के लोग, वर थे, काइंड मीन्स दयालु, टू द एनिमल्स जानवरों के प्रति। वेयर द पीपुल वर काइंड टू एनिमल्स, जहाँ के लोग जानवरों के प्रति दयालु थे। तो अब उस रोम शहर जा रहा था वो, जहाँ के लोग क्या थे, जानवरों पे अपना प्यार लुटाते थे, उसे मानते थे, उसकी केयर करते थे। देयर ही होप टू अर्न हिज लिविंग बाय सिंगिंग इन द स्ट्रीट्स। देयर वहाँ ही होप्ड, वह आशा कर रहा था, इस आशा में, टू अर्न की कमाएगा, हिज लिविंग अपनी जीविका, बाय सिंगिंग गा कर, इन द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में। देयर ही होप टू अर्न हिज लिविंग बाय सिंगिंग इन द स्ट्रीट। इस आशा में कि वह वहाँ जाकर गलियों में गाकर अपनी जीविका कमाएगा। फॉर ही थॉट, इसलिए, ही थॉट उसने सोचा, दैट की ही हैड ए फाइन, दैट की ही हैड कि उसके पास या उसकी है, ए फाइन मतलब एक अच्छी, लाउड मिस तेज, ब्रे मिस आवाज़, कि उसकी आवाज़ उस, फॉर ही थॉट उसने सोचा कि उसकी आवाज़ तेज़ और अच्छी है। तो क्या करेगा वो, उसकी आवाज़ तेज़ और अच्छी है, तो उसने सोचा कि मैं गलियों में गाकर अपनी जीविका चला लूँगा। ही हैड नॉट गॉन फॉर, ही मिस वह, हैड नॉट गॉन अधिक दूर, फॉर मिस आपका होता है दूर, गॉन मिस होता है जाना, गो की थर्ड फॉर्म आपकी होती है गॉन और सेकेंड होती है वेंट। तो ही हैड नॉट गॉन फॉर, वह अधिक दूर नहीं गया, वेन जब, ही सा उसने देखा, एन ओल्ड डॉग एक बूढ़े कुत्ते को, लिम्पिंग लंगड़ाते हुए, अलोंग द रोड सड़क पर। ही हैड नॉट गॉन फॉर, वह अधिक दूर नहीं गया था, वेन ही सा एन ओल्ड डॉग लिम्पिंग अलोंग द रोड, जब उसने एक बूढ़े कुत्ते को सड़क पर लंगड़ाते हुए देखा। वाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। मैटर मिस क्या होता है, मैटर मिस होता है मामला। वाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, मिस्टर डॉग श्रीमान कुत्ते। ही आस उसने पूछा, एलिस दुख से, सेड द डॉग कुत्ते ने उत्तर दिया या कुत्ते ने कहा, माई मास्टर हैज़ ड्रिवन मी आउट ऑफ द हाउस। माई मास्टर मेरे मालिक ने, हैज़ ड्रिवन मतलब निकाल दिया है, मी मिस मुझे है, आउट ऑफ द हाउस मतलब घर के बाहर, मेरे मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। बिकॉज क्योंकि, आई एम ओल्ड क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, एंड वीक और कमज़ोर हो गया हूँ। ओल्ड मीन्स बूढ़ा, वीक मीन्स कमज़ोर। बिकॉज क्योंकि, आई एम ओल्ड एंड वीक मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ, एंड कैन नो लॉन्गर और लंबे समय तक, गार्ड मत करना मतलब देखभाल करना, हिज हाउस मतलब उसके घर की, वेल मतलब अच्छे से, और एंड कैन नो लॉन्गर गार्ड हिज हाउस वेल, और मैं उसके घर की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, वेयर टू गो कहाँ जाऊँ, एंड वाट टू डू और क्या करूँ। लिसन टू मी मुझे सुनो या सुनो, सेड द एस गधे ने कहा, आई एम गोइंग टू रोम मैं रोम जा रहा हूँ, टू अर्न माई ब्रेड अपनी जीविका कमाने, एज ए सिंगर एक गायक के रूप में। यू सीम टू हैव ए लाउड बार्क, यू मिस तुम, सीम मिस प्रतीत होते हो, टू हैव ए लाउड बार्क एक तेज़ आवाज़ के, एंड आई फाइन एंड ए फाइन ग्रो और ए एंड मिस और एक फाइन एक अच्छी, ग्राउल मिस क्या होता है, सॉरी ग्राउल है, तो ग्राउल मिस होता है आपका गुर्राना मतलब। तो यू सीम टू हैव ए लाउड बार्क तुम एक अच्छी आवाज़ के प्रतीत होते हो, लाउड मिस तेज़, बार्क मिस आवाज़ के, तो मतलब बार्क मिस होता है वैसे भौंकना, ठीक है। तुम यू सीम तुम प्रतीत होते हो, टू हैव ए लाउड बार्क एक तेज़ भौंकने की आवाज़ से, या तुम तेज़ भौंकते हुए प्रतीत होते हो, एंड ए फाइन ग्राउल और एक अच्छा गुर्रा लेते हो, मतलब तुम्हारी आवाज़ भी तेज़ है और तुम अच्छा गुर्रा भी लेते हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। वाई डोंट यू कम विथ मी क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, एंड ट्राई वाट यू कैन डू एंड ट्राई और कोशिश करो, यू कैन वाट यू कैन डू इन द सेम वे मेरी तरह कुछ करने का। द डॉग सेड कुत्ते ने कहा, दैट की ही वॉज विलिंग
वह भी सोच रहा था। एंड दे सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी, एंड दे सेट, और दे मीन्स वे, सेट ऑफ मतलब निकल पड़े, ऑन देयर जर्नी अपनी यात्रा पर, टुगेदर मीन्स साथ साथ। द डॉग सेड, कुत्ते ने कहा, दैट ही वॉज विलिंग, वह भी सोच रहा था। एंड दे सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी टुगेदर, और वह अपनी यात्रा पर साथ साथ निकल पड़े। दे हैड नॉट गॉन, वह अधिक दूर नहीं गए फॉर मीन्स होता है दूर, ठीक है। दे हैड नॉट गॉन फॉर, वह अधिक दूर नहीं गए। वेन, जब, दे सा, उन्होंने देखा, एक टॉम कैट, एक बिल्ली को, सिटिंग मतलब बैठे हुए, बाय ए ब्रोकन वॉल, एक टूटी हुई दीवार पर, एंड लुकिंग वेरी सैड, और वह बहुत दुखी दिख रही थी। मतलब वेन दे सा ए टॉम कैट सिटिंग बाई ए ब्रोकन वॉल, जब उन्होंने एक बिल्ली को टूटी हुई दीवार पर बैठे हुए देखा, एंड लुकिंग वेरी सैड, और वह बहुत दुखी दिख रही थी। लुकिंग एट द कैट, बिल्ली के तरफ देख कर, द एस सेड, गधे ने कहा, वाट इज़ द मैटर, क्या मामला है मिस्टर कैट, श्रीमान बिल्ली। वाई आर यू सो सैड, वाई मिस क्यों, आर यू तुम, आर मिस हो, यू मिस तुम, सो मिस इतनी, सैड मिस दुखी। वाई आर यू सो सैड, तुम इतनी दुखी क्यों हो। एलिस, दुख से, रिप्लाइड द कैट, बिल्ली ने उत्तर दिया, मतलब दुखी होकर बिल्ली ने उत्तर दिया। आई हैव फैलन ऑन एविल डेज, आई हैव फैलन, मैं पड़ गई हूँ, ऑन एविल, एविल मतलब बुरे, डेज मतलब दिनों में। आई हैव फैलन ऑन एविल डेज, मैं बुरे दिनों में पड़ी हूँ, मतलब पड़ गई हूँ, या कह सकते हैं आप कि मेरे बुरे दिन आ गए हैं। आई एम बिगनिंग टू ग्रो ओल्ड, आई एम बिगनिंग, मैं शुरू हो गई हूँ, बिगनिंग मीन्स होता है शुरुआत, तो आई एम बिगनिंग, मैं शुरू हो गई हूँ, टू ग्रो ओल्ड, बूढ़ी होना, एंड कैन नॉट रन अबाउट द हाउस, और मैं अब नहीं भाग सकती घर में, आफ्टर माइस, चूहों के पीछे, एज आई यूज़ टू डू अंटिल क्वाइट रिसेंटली, आई यूज़ टू डू, जैसा कि मैं करती थी, अंटिल क्वाइट रिसेंटली, पहले, जैसा कि मैं पहले करती थी। सो माई मास्टर, इसलिए मेरे मालिक ने, बीट मी, मुझे पीटा है, हार्ड, बहुत अधिक, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, एंड ड्रॉ मी आउट, और मुझे बाहर निकाल दिया। नाउ, अब, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वाट टू डू, क्या करूँ, एंड वेयर टू गो, और कहाँ जाऊँ। सबकी प्रॉब्लम यही है, सबके मालिक ने पीट के उन्हें निकाल दिया है, और सब अब सोच रहे हैं कि क्या करें और कहाँ जाएं। अगर आप कभी मार खाते हो तो आपका रिएक्ट क्या होता है, आप कमेंट में बताइए कि आप क्या करते हैं, आप भी घर छोड़ने की बात करते हैं। डोंट वरी, लेकिन इन लोगों को तो निकाला जा रहा है घर से, आप लोग तो खुद निकलने का डिसाइड कर लेते हो कि अब मुझे घर से जाना है क्योंकि मुझे मार पड़ी, मुझे डांट पड़ी। वाई डोंट वरी, चिंता मत करो, सेड द एस, गधे ने कहा, वी आर गोइंग टू रोम, वी मिस, हम, आर गोइंग मतलब जा रहे हैं, टू रोम मतलब रोम, टू अर्न कमाने, आउट लिविंग एज सिंगर्स, आउट बाहर, लिविंग मतलब जीविका कमाने, एज सिंगर गायक के रूप में। डोंट वरी, चिंता मत करो, सेड द एस, गधे ने कहा, वी आर गोइंग टू रोम, हम रोम जा रहे हैं, टू अर्न आउट लिविंग एज सिंगर मतलब अपनी जीविका कमाने एक गायक के रूप में। वाई डोंट यू कम विथ अस, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। यू कैन आल्सो बिकम ए गुड सिंगर, यू मीन्स तुम, कैन सकती हो, आल्सो मतलब भी, बिकम मतलब बन, एक गुड सिंगर मतलब एक अच्छी गायक। यू कैन आल्सो बिकम ए गुड सिंगर, तुम भी एक अच्छी गायक बन सकती हो। फॉर यू हैव ए शार्प म्याऊ, तुम्हारी आवाज़ भी तीखी है। शार्प मीन्स क्या होती है, तीखी या तेज़। द कैट वॉज वेरी मच प्लीज, बिल्ली बहुत अधिक खुश हुई विद दिस आइडिया, इस विचार के साथ, एंड ज्वाइन द पार्टी, और पार्टी के साथ जुड़ गई या उस समूह के साथ मिल गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एज दे वर पासिंग, जैसे कि वे गुजर रहे थे, बाई ए फार्म हाउस, एक फार्म हाउस से, दे सा ए कॉक, उन्होंने एक मुर्गे को देखा, सिटिंग ऑन द गेट, दरवाजे पर बैठे हुए, एंड क्रोइंग लाउडली, और तेज से मतलब तेज से, क्रोइंग करना मतलब होता है आपका जो वो लोग बाग देते हैं,
चिल्लाते हुए, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है मिस्टर कॉक, श्रीमान मुर्गे आस्क्ड द गधे ने पूछा। मतलब हर चीज़ को गधा ही पूछ रहा है, ऐसे ही पूछ रहा है, क्योंकि मेन तो पहले उसी के साथ ऐसा हुआ, तो उसने पार्टी अपनी बनाती है। अब देखो कितने लोगों को जोड़ा अभी तक, उसने 2 लोगों को जोड़ लिया अपने साथ, उसको लेके 3 लोग हो गए। और ये लास्ट जो आपका है एक सिंगर, वो आपका कॉक है, उसको भी अब अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब उसके भी दुख को सुनेगा, उसे फिर एडवाइस देगा कि क्या करो तुम। मिस्टर कॉक, श्रीमान मुर्गे आस्क्ड द एस, गधे ने पूछा, वाई आर यू क्रोइंग सो लाउडली, तुम इतनी तेज़ी से भाग क्यों दे रहे हो। आई एम टेलिंग माई मिस्ट्रेस, मैंने अपनी मालकिन को बताया, वाट आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। रिप्लाइड द कॉक एंग्रीली, मुर्गे ने क्रोधित होकर उत्तर दिया। एंग्रीली मतलब होता है क्रोधित होकर, रिप्लाइड मिस होता है उत्तर देना। रिप्लाइड द कॉक एंग्रीली, मुर्गे ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, आई हैव क्रोड एवरी मॉर्निंग, मैं बाग देता हूँ, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, टू टेल हर, कि उन्हें बताने के लिए, द डॉन इज़ हेयर, कि वह डॉन मीन्स आपका होता है, डॉन मीन्स होता है सुबह होना, ठीक है, उजाला हो जाना या सुबह हो जाना। टेल हर, मैंने उन्हें बताया, प्रत्येक सुबह मैं उन्हें बाग देकर बताता हूँ, द डॉन इज़ हेयर, की सुबह हो गई है। एंड वाट डू यू थिंक शी मीन्स टू डू दिस मॉर्निंग, एंड वाट डू यू थिंक, और क्या सोचती हैं, शी मीन्स टू डू दिस इवनिंग, इस शाम उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा है। शी इज़ गोइंग टू हैव मी किल्ड, शी इज़ गोइंग, वह जा रही हैं, टू हैव मी किल्ड, मुझे मारने, एंड कुक्ड फॉर सपर, एंड बनाकर, फॉर सपर, सपर मीन्स क्या होता है भोजन, एंड कुक्ड फॉर सपर, और भोजन बनाना चाहती हैं। मतलब शी इज़ गोइंग टू हैव मी किल्ड, वह मुझे मारने जा रही हैं, एंड कुक्ड फॉर सपर, और भोजन बनाने जा रही हैं मेरा, मतलब मुझे मार के उसका खाना बनाना चाहती हैं। मिस्टर कॉक्स, श्रीमान मुर्गे, सेड द एस, गधे ने कहा, वी आर गोइंग टू रोम, हम रोम जा रहे हैं, टू मेक ए लिविंग बाय सिंगिंग इन द स्ट्रीट, टू मेक ए लिविंग, एक जीविका कमाने, बाय सिंगिंग इन द स्ट्रीट, गलियों में गाकर, इट विल बी बेटर फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, टू कम विथ अस, कि हमारे साथ आ जाओ, देन टू स्टे हेयर, यहाँ ठहरने से, टू हैव योर हेड कट ऑफ, अपने सर को कटाने से, मतलब अपने सर को यहाँ ठहर कर अपना सर कटाने से अच्छा है कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ। यू आर गिफ्टेड विथ ए लाउड क्रो, यू आर गिफ्टेड, तुम्हें उपहार में मिली है, विथ ए लाउड क्रो, एक तेज आवाज़, एंड इफ़ वी आर टेक केयर टू सिंग इन टोन, इफ मिस यदि, वी मीन्स हम, आल टेक केयर, पूरी सावधानी के साथ, टू सिंग गाएंगे, इन टोन, एक सुर में, वी मे गेट नो एंड ऑफ मनी, वी मे गेट नो एंड, तो हमारे धन का, मनी मतलब धन का, वी मतलब हमारे, मे गेट नो एंड मतलब कोई अंत नहीं होगा, कि मतलब हमारे धन का अंत नहीं होगा, अगर हम एक साथ सुर में गाएंगे सावधानी से, तो हमारे पैसे का अंत कभी नहीं होगा। सो कम अलॉन्ग विथ अस, इसलिए हमारे साथ आओ, विल यू, यदि तुम चाहो, मतलब विल यू, तुम चाहो तो। विथ ऑल माई हार्ट, पूरे हृदय से, सेट द कॉक, मुर्गे ने कहा, एंड दे आल सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी, एंड दे आल, और वे सब, सेट ऑफ निकल पड़े या चल पड़े, ऑन देयर जर्नी अपनी यात्रा पर, और वे सब अपनी यात्रा पर चल पड़े। वेन नाइट फेल, जब रात हो गई, दे फाउंड देमसेल्फ, दे मिस उन्होंने, फाउंड मिस पाया, देमसेल्फ मतलब खुद को, इन ए वुड, एक जंगल में, वेन नाइट फेल, जब रात हो गई, दे फाउंड देमसेल्फ इन ए वुड, उन्होंने अपने आप को जंगल में पाया, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, टू पास द नाइट देयर, रात वहीं बिताने का, पास मतलब बिताने का, नाइट मीन्स रात,
एंड डिसाइडेड टू पास द नाइट देयर, और रात वहीं बिताने का निश्चय किया। द एस सेड गधा एंड द डॉग, और कुत्ता, लेट देमसेल्फ खुद को लिटा लिया या खुद को बिछा लिया। डाउन अंडर ए टाल ट्री, एक लंबे पेड़ के नीचे, मतलब गधा और कुत्ता एक लंबे पेड़ के नीचे, अंडर ए टाल ट्री एक लंबे पेड़ के नीचे लेट गए। द कैट क्लिम्ड अप इनटू द ट्री, बिल्ली पेड़ के ऊपर चढ़ गई। एंड द कॉक फ्लू अप टू द टॉप, एंड कॉक और मुर्गा फ्लू उड़ा अप टू द टॉप सबसे ऊपर ऑफ द ट्री पेड़ के। एंड सेट ऑन ए लिटिल ब्रांच, और एक छोटी सी शाखा पर बैठ गया। बिफोर पहले ही वेंट टू स्लीप, सोने जाने से पहले। द कॉक टूक ए गुड लुक, मुर्गे ने अच्छी तरीके से अराउंड मतलब चारों तरफ देखा। ऑन ऑल द साइड्स, सभी तरफ। टू सी दैट ऑल वाज वेल, टू सी देख रहा था, टू दैट की ऑल वाज वेल की सभी तरफ या चारों तरफ ठीक है, सब कुछ ठीक है। फॉर अवे इन द डिस्टेंस, फॉर अवे मतलब कुछ दूरी पर, डिस्टेंस मतलब दूरी पर। फॉर अवे दूर, इन द डिस्टेंस दूरी पर। फॉर अवे इन द डिस्टेंस कुछ दूरी पर। ही सा लाइट, उसने रोशनी देखी। सो दे सेट ऑफ टूवर्ड्स द प्लेस, सो इसलिए दे सेट ऑफ वह निकल पड़े, टूवर्ड्स और द प्लेस उस स्थान के। सो दे सेट ऑफ टूवर्ड्स द प्लेस, इसलिए वह उसी स्थान की ओर निकल पड़े या चल पड़े। वेयर द कॉक, जहाँ पर मुर्गे ने हैड सीन देखी थी, द लाइट रोशनी, जहाँ पर मुर्गे ने रोशनी देखी थी। सून जल्द ही, दे फाउंड उन्होंने पाया, देमसेल्फ खुद को, क्वाइट क्लोज एक, क्वाइट मतलब शांत, क्लोज मतलब पास, टू ए हाउस एक घर के। सून दे फाउंड देमसेल्फ क्वाइट क्लोज टू ए हाउस, जल्द ही उन्होंने अपने आप को एक शांत घर के पास पाया। बीइंग द टालेस्ट इन द पार्टी, द एस, बीइंग द टालेस्ट सबसे लंबा, इन द पार्टी उस समूह में, द एस गधा था। वेंट अप टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। पीप्ड इन फॉर ए फ्यू, और कुछ, फ्यू मिस मतलब कुछ, ए फॉर ए मतलब पीप मिस होता है झाँकना, और उसने अंदर झाँका। तो ये जो आपका चैप्टर है यहीं पर मतलब ये पार्ट आपका यहीं पर क्लोज होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करें, रीड करें, और जो समझ में ना आए हो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मीनिंग है जो आपको समझ में नहीं आई। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।